Okay, sir. Thank you. So, but we were doing that. How could Newton find the inverse square law? Okay. So, for that, to draw property this circle. Okay. Let this is a circle of radius r, and let a body of mass m is moving with linear velocity v. Is moving with linear velocity v. So when this body is moving in linear velocity v, and it is rotating, here is at point A, here is at point B. When reaching body at point B, its linear velocity is again v. So there is a force toward the center, and that force is known as centripetal force. That force is known as what? Centripetal force. और जो एक्सेलरेशन है बेटे वो भी सेंटर की तरफ होता है. ओके, एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होता है. ठीक है. तो acceleration when a body is moving on a circular path is always toward the center of circle. Okay, and it is always equal to v square upon r, where v is the linear velocity. linear velocity क्यों बोलते हैं? बोलो बेटा, बोलो शाबाश. अगर मान लो जब ये बॉडी ए पॉइंट के ऊपर है और ये बॉडी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है. ओके, विद लीनियर वेलोसिटी. अगर मान लो ए के ऊपर इसकी स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये बॉडी सीधी चली जाएगी ऐसे नंबर. अगर यहाँ पे बी के ऊपर इसकी स्ट्रिंग टूट जाती है तो बॉडी सीधी चली जाएगी. ओके, तो ये जो एक्सेलरेशन होती है इसकी टुवर्ड द सेंटर, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, where v is the linear velocity, r is the radius of the circular path. We know that force is equal to mass into acceleration. Equation number 1. So therefore, this is equation number 2, this is equation number 1. Using one, equation number 2 becomes, therefore, we know that F is equal to ma, therefore, force is equal to mass into acceleration. क्या हो जाएगा बेटा? V square upon r. This is equal to equation number 3. This is equation number 3. Okay, m is F is equal to mv square upon r. Okay, right? Yes. So therefore, क्या करते now? We know velocity is equal to what? Speed is equal to distance covered upon time taken. Upon time taken. So what is the distance covered in? अच्छा, एक चक्कर काटने के लिए अगर टाइम लेता हो कितना? कैपिटल T. This is known as time period. This is known as time period. Time taken by the body to complete one circle is called what? Time period. So एक चक्कर में बेटे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 pi r upon t. Okay, 2 pi r upon t. This is equation number 4. Putting equation 4 in 3, we get force is equal to mass into v square, mass upon radius. as लिखा जाएगा बेटा, and v square की जगह आ जाएगा कितना? 2 pi r upon t whole square. ओके, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास कितना? बोलो शाबाश. m upon r as it is. 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4. पाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर. r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर. ओके, और it can be written as equal to what? 4 pi स्क्वायर. बेटे स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा? r है ना, r स्क्वायर ऊपर स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 4 pi r into m upon t into m upon t. Okay, this is equation number 5. This is equation number 5. Write down. We know from Kepler's third law of planetary motion that t square is directly proportional to
r cube. T square is directly proportional to what? R cube, or T square is equal to K into R cube. ओके बेटा, सो अब ये जो टी स्क्वायर है इसमें टी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 में इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे क्या, ए आर क्यूब. ओके, टी स्क्वायर जो है यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे के आर क्यूब. ओके, तो आ जाएगा हमारे पास कितना बेटे, देयरफॉर इक्वेशन 5 becomes f is equal to 4 pi square, okay, into n into r अपॉन टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, के आर क्यूब. आर से क्यूब कैंसिल हो गया, बच जाएगा स्क्वायर, है ना. ओके, सो देयरफॉर अब बेटे आपके पास क्या आएगा, बोलो बोलो इधर देखो. तो देयरफॉर आपके पास आ गया 4 पाई f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन k इनटू n अपॉन r स्क्वायर. ये जो चीज है बेटे क्या है, कांस्टेंट. ओके, 4 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है और k की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट. ओके, राइट डाउन, राइट डाउन. यस, और f is directly proportional to m upon r square. F is directly proportional to m upon r square. Write down, if the force on moon, if the force on moon is proportional to its mass, is proportional to its mass, comma, it should also be proportional to, it should also be proportional to mass of earth. इसको बेटे अर्थ मान लोगे, ये जो अर्थ है इसका मास कितना है, कैपिटल एम, और मून का मास कितना है, स्मॉल एम. ओके, मून का मास कितना है, स्मॉल एम और कैपिटल एम. ओके, मास ऑफ अर्थ. ओके, देयरफॉर ये जो केस लास्ट आई बेटे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r स्क्वायर, इसका नाम दे दो 6 नंबर. ओके, देयरफॉर f is directly proportional to capital M small m upon r square. Okay, or f is directly proportional to capital M small m. This is equation number 7, and also f is directly proportional to 1 upon r square. This is equation number what, 8. तो इसलिए ठीक है, यहां से पता चला था किसको, न्यूटन को, भाई जो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ओके, व्हाटसोएवर देयर मे बी देयर साइज. लिसन, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कौन कौन से पार्टिकल को लगता है, हर एक तरह के पार्टिकल को. ओके, चाहे वो बड़ा हेवली बॉडी हो, चाहे सन है, चाहे मून है, चाहे कोई हेवली बॉडी है, उसके बीच में भी लगता है, और एक पार्टिकल के बीच में भी. जिस बॉडी की मास होती है, चाहे छोटे से छोटा पार्टिकल है, बड़े से बड़ा, ओके, तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े में भी हो सकती है. ओके, होती है, हो नहीं सकती, होती है. ओके, ओके, और ये जो फोर्स है ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. अच्छा, मेरे को बताना, ये जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अदर बॉडी के लिए, इसका हमने स्पेशल नाम दिया, क्या नाम है उसका, ग्रेविटी. क्या नाम है उसका, ग्रेविटी. अदरवाइज हम बाकी जैसे मून की अपनी ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ओके, हाँ, तो उनको बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून. ओके, लेकिन वो अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर हम रहते हैं, हम सब कुछ अर्थ से लेते हैं. ओके, इसलिए इसके नाम को स्पेशल नाम दे दिया क्या, ग्रेविटी. ओके, अगर आपको मान लो क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टुवर्ड्स अदर बॉडीज इज कॉल्ड, तो ग्रेविटी. ओके, ग्रेविटी. ओके, अच्छा लिसन, मान लो एक चौक है और एक मून है ना, चौक ने मून को F1 फोर्स से खींचा हुआ है और मून ने चौक को F2 फोर्स से खींचा हुआ, अट्रैक्ट किया है.
चौक ने मून को F1 फोर्स से और मून ने फोर्स को इसको चौक को F2 फोर्स से। तो क्या F1 बड़ी है F2 बड़ी है या दोनों इक्वल है या कोई भी बड़ी छोटी नहीं है, दोनों इक्वल है। ओके देखो समझ रहे हो आप। लेकिन होता क्या है बेटे, मैंगो किसी का गिरता है तो मैंगो हमें नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मैंगो ने भी फोर्स अर्थ के ऊपर उतनी लगाई होती है जितनी अर्थ ने मैंगो के ऊपर लगाई होती है। लेकिन सीधी सी बात है मैंगो का मास छोटा है, और अभी हमने पढ़ा क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब एक्सेलरेशन अर्थ में आएगी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन जो मैंगो में आएगी दैट इज फोर्स अपॉन मास ऑफ मैंगो। तो फोर्स ही तो दोनों सेम है। अब क्योंकि अर्थ की मास क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, कम है। ओके समझिए। ओके जी, just 1 minute, 1 minute. Of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis, है ना। लेकिन जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, इलिप्टिकल। यहाँ पे मैंने लिया है सर्कुलर। ओके सर्कुलर का बेटे हम अगर मैथमेटिक्स देखें तो इजी है, अगर हमने इलिप्टिकल का मैथ्स देखना हो तो उसमें दो फोकस होते हैं, इसलिए मैथ्स टफ हो जाता है ना। उससे बचने के लिए हमने इसका क्या ले लिया है, सर्कल। ओके तो सर्कल का जो डायमीटर होता है छोटा और बड़ा, जो हमने पढ़ा क्या, ये एलिप्स होता है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं माइनर है। तो देखो ये सबसे बड़ी है सबसे छोटी, और भी कोई बड़ी कुछ छोटी कुछ छोटी कुछ छोटी बड़ी है ना। ओके इसलिए इसका मैथ टफ होता है, और दैट इज व्हाई वी टेक हियर सर्कुलर। ओके तो ये आ गया इसका सेमी मेजर एक्सिस है ना, ये इसकी मेजर मान ले तो इसका हाफ क्या आ गया, सेमी मेजर। ओके तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, एक ए आ गया और यहाँ पे जो है ठीक है ए आ गया, के की वैल्यू के की जगह टी स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास क्या, एम अपॉन टी स्क्वायर की जगह आ गया के अपॉन आर क्यूब, एक आर से क्यूब कैंसिल हो गया, स्क्वायर बच गया ना। अब ये जो तीन चीजें हैं कौन कौन सी चीजें, 4 पाई स्क्वायर एंड के, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है बेटा कांस्टेंट, इसलिए ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू, है ना। तो अगर फोर्स जो है मास ऑफ मून के बराबर क्या है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो अर्थ के मास के भी क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके ओके सो देयरफॉर ये आ गया f इज इक्वल टू व्हाट, बोलो शाबाश, f is equal to what, directly proportional to mass of earth into mass of moon, या mass of first body into mass of second body, okay divided by r square। तो अगर इसको हम अलग अलग करके देखें तो न्यूटन का फर्स्ट क्या था, उसको पता चल गया कि दो बॉडीज के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है पूछा था ना, यही पूछा था बेटा ये। ओके हाँ यस राइट डाउन नेक्स्ट। तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कर लिया बेटा, वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स वगैरह हो गया हमारा ना। ओके डिफरेंशिएशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी भी हो गया। ओके एंड फ्री फॉल हो गया बेटा, फ्री फॉल भी हो गया। ओके फ्री फॉल यस राइट डाउन। Equations of motion of a freely falling body, equations of motion, equations of motion, equation of motion of a freely falling body, equation of motion, equation of motion of freely falling body, freely falling body, freely falling body। ओके ओके बेटा। अच्छा हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी और अंडर ग्रेविटी,
under gravity. Okay, and if u is equal to 0, चलो बात करते हैं। तो बेटे फर्स्ट इक्वेशन होती है हमारे पास, वो सारा कौन सी होती है, v is equal to u plus at. ओके, सेकंड कौन सी होती है हमारे पास, s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। एंड थर्ड वन कौन सी होती है बोलो शाबाश, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ जब कोई बॉडी वेट डिटरमिनेशन, जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंदर गिरती है नीचे को, तो उस टाइम उसकी एक्सीलरेशन हम लेते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। ओके, जी के बराबर स्मॉल जी। ओके, तो देखो क्या आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्या बन जाएगी बेटा बोलो, v is equal to u plus gt। ओके, और दूसरी क्या बन जाएगी, अब देखो अगर हम डिस्टेंस ऊपर से जब बॉडी नीचे गिरेगी तो आप उसको s भी मान सकते हैं या आप उसको h भी मान सकते हैं ना, ये कितनी हाइट है, तो s की जगह हम क्या लिख लेंगे, h हाइट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a की तरफ जाएगा gt स्क्वायर। ओके, एंड v स्क्वायर थर्ड वन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ओके, ओके, अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 में बेटे अगर इफ मान लो u इक्वल टू 0 हो जाए तो देखो इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या आएगा, अगर u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास रह जाएगा बोलो शॉर्ट क्या, v इक्वल टू gv। यहां भी u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या रह जाएगा बोलो शॉर्ट, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ओके, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यार v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2gh। ओके, तो जब बॉडी होती है, ठीक है, अच्छा लिसन, एक और बात रखो बेटे आपने, अगर तो लिसन, जब बॉडी नीचे को आती है तो g की वैल्यू क्या लेते हैं बोल शाबाश, पॉजिटिव, पॉजिटिव लेते हैं, और कितनी लेंगे, 10 ले लेंगे ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और जब बॉडी ऊपर को जाती है तो g की वैल्यू क्या लेंगे हमने, नेगेटिव माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 या 9.8। ओके, जो दिया होगा पेपर में, पेपर में अगर 9.8 दिया है तो आपने 9.8 लेना। ओके, और अगर नहीं दिया कुछ भी तो यू कैन टेक 10। ओके, यस बेटा जी, नाउ राइट डाउन mass and weight, 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 mass and weight। ओके, हाँ जी बेटा, यस, इधर लिखोगे मास ब्रैकेट में स्मॉल m एंड वेट, वेट w। ओके, ओके, यस, राइट डाउन फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन, मास में लिखो बेटे डेफिनेशन, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, it is the quantity of matter, it is the quantity of matter contained in a body, quantity of matter or substance, quantity of matter or what, substance। okay, weight में लिखो definition, it is the force, weight of a body, it is the force by which the body is attracted, by which the body is attracted by the earth,
weight is the force या gravitational force by which the body is attracted toward the by the earth toward its center. Okay, और वेट होता है कितना बेटे बोलो शाबाश, वेट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, mg। वेट जो होता है वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और कितना होता है बॉडी का मास अगर m है तो g की वैल्यू कितनी है, g। ओके, mg। ओके ओके। नंबर 2, it is measured with the help of physical balance। फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस होता है जो दुकानों पे उतर दुकानों के ऊपर होता है। ओके ओके, फिजिकल बैलेंस। और इसमें लिखो बेटे, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ओके। नंबर 3, यूनिट, यूनिट बेटे। ओके, मास का यूनिट है किलोग्राम इन SI। ओके, एंड ग्राम इन व्हाट, EGS। छोटा यूनिट क्या है, ग्राम। ओके, और वेट में जो है बेटे न्यूटन। SI यूनिट क्या, वेट का न्यूटन। और डायन, डायन क्या है, CGS यूनिट। ओके ओके, यस। नंबर 3, सॉरी नंबर 4, always constant, mass of a body is always constant and remains constant, always constant। ओके, बॉडी चाहे यहाँ पे हो, चाहे पोल्स के ऊपर हो, चाहे मून के ऊपर चल जाए, लेकिन उसका जो मैटर है, मैं अगर मून के ऊपर चल रहा हूँ मैं ऐसे रहूंगा इतना, तो मेरा मास उतना रहेगा, लेकिन मून की जो ग्रेविटी हो गया काम है ना, इसलिए वहां पे मेरा वेट क्या हो जाएगा, काम। ओके ओके, हाँ, वेट में लिखो बेटा, इट changes from place to place। Weight of a body changes from place to place। Okay, it is greater at poles, it is greater at poles and less at equator, and less at equator, and less at beta equator। मास में लिखो बेटे नंबर 5, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। और वेट फोर्स है तो वेक्टर हो गया ना, it is a vector quantity। ओके, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और लिखो बेटा नंबर 6, मास में लिखो, मास में नंबर 6, मास में it is not affected by the presence, it is not affected, affected AFFECTED। okay, it is not affected by the presence of other bodies, of other bodies। okay, मास में लिखो, it is fundamental quantity, it is fundamental quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसमें वेट में लिखो बेटे, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को, डिराइव्ड, वेट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 6th 7th और 8th? 8th पॉइंट, जस्ट वन, 8th पॉइंट है। यस, राइट डाउन। मास में लिखो, कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। ओके, वेट में लिखो, मे बी नेगेटिव, मे बी
नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ओके, इसमें लिख लो फंडामेंटल पॉइंट, इसमें लिखो कैन नेवर बी जीरो के, ऑलवेज विद ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ना, मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव होगा ना। ओके, और जो वेट होगा क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर नेगेटिव भी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो भी हो जाता है और वेक्टर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होके वेट कैन मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ओके, हाँ जी बेटा, यस, राइट डाउन, यस, weight of a body, right on, next question important, weight of a body on the surface of moon, on the surface of moon, or निकलना है ना, और prove that weight of a body decreases by 1/6, decreases by 1/6, decreases by 1/6, 1/6, okay, of its weight on the surface of earth, on the surface of earth, मीन्स अगर किसी बॉडी का वेट यहाँ पे कितना है 60 न्यूटन है, तो मून के ऊपर कितना रहेगा 60/6 कितना रहेगा 10 न्यूटन। ओके, ओके, राइट ऑन बेटे, वी नो small g is equal to capital G capital M upon R square। ओके, पढ़ा हमने, small g is equal to what, capital G capital M upon R square। ओके, so therefore acceleration due to gravity of moon, कैपिटल G तो कांस्टेंट ही होता है ना, ये तो अर्थ के लिए को या मून के लिए को या, और दिस इज द मास ऑफ मून एंड दिस इज द रेडियस ऑफ मून। ओके, yes, mass of moon, so what is the value of G, 6.67 into 10 raised to power minus 11, what is the mass of moon, it is equal to 7.3 into 10 raised to power 22 divided by square of the radius of moon is 1.74 into 10 raised to power 6 meter per square, and it will come out to equal to 1.6 meter per second square, 1.6 meter per second square। okay, or acceleration due to gravity on the moon is equal to acceleration due to gravity of earth divided by 6। okay, 9.8 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 1.6 है ना। okay, or you can say 1/6 into acceleration due to gravity, or it is equal to 9.8/6 equal to 1.6 meter per second square। हाँ जी बेटा, देखना बड़े ध्यान से देखना, पर लिसन, न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, ऑन व्हाट, देखो इधर, we know capital G is equal to, sorry, we know force between two bodies of masses m1 and m2 when they are separated by a distance r is equal to G m1 m2 upon r square है ना। ओके, अच्छा लिसन, आपको दिया जाता है कंडीशन में बॉडी नंबर 1 की जो मास है वो कितनी कर दी जाती है, हाफ, बॉडी नंबर 2 की मास भी कितनी कर दी जाती है, हाफ, तो बताओ उनके बीच की फोर्स कितनी होगी ना, अगर यहाँ पे फोर्स F, ओके, तो नाउ बेटे जब मास चेंज होती है, नाउ व्हाट इज m1 डैश, m1 डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ F1,
m1 डैश m1 का जो नई मास हो गई वो कितनी हो गई, m1 का हाफ। तो व्हाट इज m2 डैश, m2 बेटे m2 जब चेंज होते हैं, चेंज उसका नाम दिया हमने m2 डैश, वो कितना है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, m3 डिवाइडेड बाय 2 है। ओके, सो देयरफॉर व्हाट इज द न्यू फोर्स, ये जो फोर्स हो जाएगी F डैश वो कितनी हो जाएगी बोलो सास, इट इज इक्वल टू कैपिटल G, तो वैसा रह जाएगा इनटू क्या आएगा m1 डैश इनटू व्हाट m2 डैश डिवाइडेड बाय व्हाट, आफ्टर r तो चेंज नहीं हुआ ना, तो देयरफॉर ये आ गया बेटा कितना, कैपिटल G इनटू कितना आएगा 1/2 ऑफ m1, m1 डैश कितना है 2 ऑफ m1 इनटू 1/2 ऑफ व्हाट m2 divided by what, half square। ओके, लिसन लिसन इधर देख लो, सो देयरफॉर कितना आएगा f डैश कितना आएगा, कैपिटल G इनटू m1 इनटू m2 अपॉन 4 इनटू हाफ स्क्वायर है ना, यही आ गया। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/4 इनटू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और f डैश इक्वल टू 1/4 ऑफ f है ना। जितनी फोर्स इनके बीच में पहले f थी, अब इनका मास को अगर हाफ हाफ घटा दिया जाए तो फोर्स अब f के मुकाबले कितनी हो जाएगी, f/4 है। ओके, इसको सॉल्व करने की लोड थी नहीं, m/2 2 इसका आएगा, m/2 इसका आ गया 1/4 है ना, m1 का कितना आ गया 1/2 ऑफ m1 1/2 ऑफ m2, तो नीचे 2 2 बड़े बाकी तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वैसे रह गया ना। ओके, सो देयरफॉर फोर्स कितनी आ गई 1/4 ऑफ f, जो पहले फोर्स थी उसका 1/4 है ना। ओके जी, तो m1 डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, क्या हटा दिया, हाँ हाँ डैश यहाँ पे, यार क्या बात कर रहे हो आप, लिसन, अगर कोई बोले आपसे भाई अगर दो बॉडीज की मास है, अगर इन बॉडीज की मासेस को एक की जो मास है उसको ट्रिपल कर दिया गया और दूसरी बॉडी की मास को 10 टाइम्स, मींस m1 डैश जो है वो कितनी हो गई